let's move to the next experiment. The air is present everywhere. What we see as empty is actually not empty. They also contain air. मतलब अगर कोई चीज़ खाली है तो वो खाली नहीं है, उसमें भी कुछ भरा हुआ है. एंड क्या भरा हुआ है? हवा. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट. 3 ग्लासेस है यहाँ पे. एक ग्लास में पूरा पानी भरा हुआ है, एक ग्लास में पानी आधा है एंड एक ग्लास में पानी बिल्कुल भी नहीं है. इट मीन्स ये पूरा खाली है. ओके. सो यहाँ पे हमें क्या एक्सपेरिमेंट करना है? ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ 3 ग्लासेस फिल इन द टेबल बिलो. ओके. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको इन तीनों ग्लासेस को इवेल्युएट करना है एंड देन देखना है कि क्या होता है. सो यहाँ पे कॉलम्स दिए हुए हैं. 3 कॉलम्स है. फर्स्ट इज ऑफ सीरियल नंबर 1 to 3. सेकंड इज ऑफ ग्लास एंड फर्स्ट ग्लास, सेकंड ग्लास एंड थर्ड ग्लास. एंड थर्ड कॉलम इज अबाउट हाउ इज इट, मतलब वो कैसे है. ठीक है. तो फर्स्ट ग्लास कैसा है? फुल ऑफ वाटर. सेकंड ग्लास इज हाफ ऑफ वाटर एंड थर्ड ग्लास इज एम्प्टी. मूव टू द नेक्स्ट पैरा. Some things like clay, chalk, etc. also have air in them. Let's find out. Put a piece of chalk in a glass of water. What is coming out of the chalk? Okay. So आपको क्या करना है यहाँ पे? 3 ग्लासेस अगेन लेने हैं पानी से भरे हुए एंड उसमें कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी है, कुछ चीज़ें आपको उसमें डालनी है. ओके. सो उसके बाद उसमें क्या होता है वो चीज़ें हम देखेंगे आगे. So students, let's see what is happening here. There is 3 glasses full of water and we have put 3 things in it. In a first glass we have put a piece of chalk, in a second mud cake, and in third glass we have put a piece of brick. After putting all these 3 things in the glass, let's see what is happening when here. the chalk is put in water, the air comes out of the chalk. You can clearly see here is some bubbles coming out from chalk, mud and bricks also. Okay, so whose bubble is this? This is air bubble. It shows that these all things have tiny holes in it and which contain some airs. And after soaking water from the glass, these all things releases air from them. It comes out from the glass as a form of bubbles. so when the chalk is put in the water, the air comes out of the chalk in the form of bubbles. Now repeat this experiment with a mud cake and a brick. Mud cake, it means मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा. ओके. एंड अ ब्रिक, ब्रिक मतलब एक ईंट का टुकड़ा. सो उनमें भी जो अंदर बबल्स होते हैं मिट्टी के टुकड़ों में और ईंट में अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, उनमें एयर भरा हुआ होता है. एंड जब भी आप उसे किसी पानी से भरे हुए ग्लास या फिर किसी भी कंटेनर में आप डालते हैं तो उसमें से एयर बबल्स निकलने लगते हैं. ओके. दैट शोज दैट नथिंग इज एम्प्टी, देयर इज समथिंग ऑलवेज एंड दैट इज एयर. ओके. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. Look at the picture and tell what does the air do. See. Now say students, there are 4 pictures in your book. 2 pictures in page number 36 and 2 pictures in page number 37. So what you have to do, you have to write what does the air do in these all pictures. ओके. सो इन चारों पिक्चर्स में स्पेसिफिक प्लेसेस दिए हुए हैं. सो आपको इन सभी प्लेसेस पे लिखना है कि हवा हमारे लिए क्या काम करती है. इन द फर्स्ट पिक्चर वी कैन क्लियरली सी अ वुमन इज थ्रेसिंग विद द हेल्प ऑफ एयर. सो द एक्टिविटी दैट शी इज डूइंग इज कॉल्ड थ्रेसिंग. सो वी विल राइट थ्रेसिंग इन ब्लैंक स्पेस. In a second picture, a boy is flying kite and that kite is flying with the help of air. In third picture, a girl is playing with a paper fan
and she is spinning up with help of air. Now let's see what is happening in picture number 4. There is a girl is blowing air into the balloons. So we can see to inflate the balloon we need air. Now let's move to the next section. Write the other uses of air apart from all these uses. What you have to do? यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हमने एयर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट की हुई हैं, आपको उनके अलावा हवा को और कितने तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, हवा का और क्या यूज़ है हमारी लाइफ में, वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है. सो ये कर लेंगे आप सभी, ठीक है. Students, in this part of page is the process of making a paper fan, and what is the process of making paper fan is clearly shown here, and you have to make a paper fan and it will help you to make paper fan, and it will look like this. In this page you can see here there is few oral questions and few written questions to do. So इसके आंसर्स हम लोग कर लेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें जानना ज़रूरी है. सो दैट देखते हैं कि ओरल क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चंस हैं. टू बी टेकन अप ओरली, इसे आपको ओरल क्वेश्चन में करना है. व्हाट डू वी ब्रीद इन, ठीक है, हम ब्रीद इन करते हैं तो हम किस चीज़ को अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू वी फील एयर, हम एयर को कैसे फील कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ फिल्ड इन द बलून, बलून में क्या भरा हुआ होता है. एंड स्टूडेंट्स, रिटन टास्क में आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं. 2 आपका क्वेश्चन आंसर है एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फिल इन द ब्लैंक्स, जहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सी, व्हिसल एंड एयर. एंड आपको 3 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जहाँ पर आपको ऑप्शंस को फिल करने हैं. इसके अलावा एक प्रोजेक्ट वर्क है, देखते हैं वो क्या है. मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स और टॉयज विच मूव और प्रोड्यूस साउंड बाय एयर. इट मीन्स आपको कुछ ऐसे खिलौने या चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं या फिर एयर की वजह से मूव होते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर द डे. मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में और आप सभी ये सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे अपने कॉपी में. एंड डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली एंड डोंट गो आउट विदाउट रीज़न. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव. गुड डे.